The condition for SHM means when I say a particle is in SHM, what is the first impression you will get in terms of force or acceleration? You will say that the force acting is what? F equals to minus kx, या फिर एक्सेलरेशन कैसा इस पे लग रहा है? तो a equals to minus omega square x. Is it? Yes, sir. Condition for oscillation is your stable equilibrium state. Stable equilibrium state means there is a presence of mean position, minimum potential energy state होता है ये, है ना? And there is a restoring force on the body when it is slightly disturbed. Example I took was the spring block system. General expression for oscillatory body will be the force acting would be of the form of x to the power n, F equals to minus kx to the power n, where n should be positive odd number. Who decides this value of n? So we in generally define n with the experiment करके निकाला जाता है ये, ठीक है? और broadly अगर समझा जाए तो larger the displacement, larger is taken as the value of n or comes the value of n. For very small displacement, n is taken as 1. That would be the simplest form of oscillatory motion. We call it simple harmonic motion, right? तो जैसा यहाँ पे समझाया मैंने कि we need to apply the condition of very small displacement when we talk of simple harmonic motion. तो एक फोर्स दिया, क्या ऐसा कंडीशन लगाएंगे कि ये फोर्स जो हो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन बॉडी में प्रोवाइड कर सके? तो द आंसर विल बी गिव अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट such that x cube and x to the power 5 can be ignored. हाउ टू फाइंड मीन पोजीशन? तो मीन पोजीशन पे फोर्स 0 होता है, वहां से सॉल्व करके हम x निकाल लेते हैं. So important points or terms related to simple harmonic motion is your amplitude, time period, frequency, angular frequency, phase. अभी phase वगैरह सब कुछ हम लोग जब इक्वेशन में देखेंगे तो समझ में और बेटर आएगा. बट यस, अगर हम डिस्टर्ब कर देते हैं ब्लॉक को और वो ऑक्सीलेट कर रहा है, सो वेयर वी फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी, वेयर वी फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी? At the extremes. ऑन द एक्सट्रीम्स, क्योंकि वहां से लौटना है तो वहां पे रुकेगा तभी लौटेगा. सो ऑन द एक्सट्रीम देयर इज अ मिनिमम वेलोसिटी. सो वेयर वी विल एक्सपेक्ट मैक्सिमम वेलोसिटी? X equal to 0. x इक्वल टू 0 मीन्स मीन पोजिशन पे मैक्सिमम स्पीड रहेगा उसमें, ठीक है? द फोर्स एट द मीन पोजिशन इज 0 एंड फोर्स एट द एक्सट्रीम विल बी मैक्सिमम, ठीक है? f इक्वल टू के एक्स है, तो a मैक्सिमम जब होगा, x मैक्सिमम जब होगा तो फोर्स भी बॉडी पे मैक्सिमम होगा. एंड फॉर द सेम रीजन एक्सेलरेशन इज ऑल्सो मैक्सिमम, है ना? एक्सेलरेशन इज ऑल्सो मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम्स. Now we are coming for the equation of SHM. So यहाँ पे पहले हम लोगों ने लिस्ट आउट किया है. The situation was कि एक पार्टिकल है जो प्लस ए से माइनस ए के बीच में ऑक्सीलेट कर रहा है, ठीक है? ऑक्सीलेट कर रहा है और ऑब्जर्वर ना किसी t इक्वल टू 0 पे इस सिस्टम को ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो उसके घड़ी के हिसाब से अभी t 0 से चालू हुआ है. पार्टिकल क्या जरूरी है कि मीन पोजीशन पे ही हो? तो ऐसा नहीं है, ठीक है? इट कुड बी दिस ऑब्जर्वर कैन फाइंड द पार्टिकल एनीवेयर इन दिस रेंज -a to +a, ठीक है? सो वी टुक t इक्वल टू 0 when the particle was at x equals to 0, and at this point of time the particle will have velocity v0, ठीक है? आफ्टर सम टाइम, एंड ये इनिशियल कंडीशन होता है जो यूजुअली हम जानते हैं,
या क्वेश्चन में दिया जाता है इनिशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। नाउ at any time t particle would be at some other place where its position will be taken as x, velocity v and acceleration a, right? So what are those equation? So at any time t equation number 1, x equals to a sine omega t plus delta, right? We know that the value of sine lies between -1 to 1. तो x का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा? x means position of the particle, so it will lie between -a to a, जो कि फिगर में दिख ही रहा है. Omega t plus phi is called phase. Phase is what? Time varying angle, right? Now when I put t equals to 0, initial phase का मतलब क्या होता है? Word initial means t equals to 0. So when I put t equals to 0 here, we get phase equals to delta. This delta is called initial phase or phase difference, right? Initial phase और phase difference सीधा सा मतलब है कि t equals to 0 पे कहाँ है पार्टिकल. नाउ क्वेश्चन इज कि ये एंगल है, तो जो ये पार्टिकल एक लाइन पे चल रहा है, इसमें तो दिख ही नहीं रहा है कि वो एंगल किधर है, ठीक है. सो फॉर दैट वी विल कम अक्रॉस कि कैसे एंगल देखना है इसमें, ठीक है. पहले इक्वेशन पे हम लोग बात कर ले. दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM, a इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा. वेलोसिटी कैसे मिलता है? तो डिफरेंशिएट करके मिलता है. साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ particle in SHM, velocity of the particle in SHM. What is the maximum velocity? So it is a omega. कहाँ पे होगा? मीन पोजीशन पे होगा, ठीक है. एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, अगेन हम a को दोबारा डिफरेंशिएट कर दें, मतलब dv अपॉन dt कर दें, तो वहां से ये एक्सप्रेशन आ जाएगा विच इज द SHM, acceleration of the particle in SHM, ठीक है. This is again a standard equation of SHM, means a equals to minus omega square x. इनमें से कोई भी एक इक्वेशन अगर तुमने बोल दिया ना कि पार्टिकल का ये वेलोसिटी है या पार्टिकल का ये एक्सेलरेशन है, तो अंडरस्टूड रहेगा कि वो पार्टिकल SHM में है और उसके टर्म्स डिफाइन हो जाएंगे. मीन्स टर्म्स क्या डिफाइन हो जाएगा कि कितना एम्पलीट्यूड है, कितना फ्रीक्वेंसी, ये सब कुछ डिफाइन हो जाएगा खुद ब खुद, ठीक है. नाउ कमिंग टू द डेरिवेशन, वी स्टार्ट विथ व्हाट? वी स्टार्ट विथ पार्टिकल इन SHM. इसका मतलब f इक्वल्स टू माइनस के एक्स, यहाँ से एक्सेलरेशन लिखेंगे और ये आ जाएगा a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, लाइक दिस, जहाँ पे ओमेगा स्क्वायर को हम k अपॉन m लेंगे एंड ओमेगा इक्वल्स टू रूट अंडर k अपॉन m. ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल इन SHM विच डिपेंड्स ऑन k एंड विच डिपेंड्स ऑन मास. q माना ये ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू k अपॉन m, इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं आज, ठीक है. अभी ये ड्यू है, ठीक है, कि q माना मैंने ओमेगा स्क्वायर ही इसे, तो दैट इज ड्यू टू आंसर we'll go across. Now अभी क्योंकि एक्सेलरेशन मुझे पता है, वेलोसिटी चाहिए, ठीक है. सो एक्सेलरेशन को से वेलोसिटी लाने के लिए इंटीग्रेट करना है. we will write v dv अपॉन dx, क्योंकि दूसरे तरफ x था इसलिए. do the cross multiplication, go for the integration and then we'll come across this. ना फाइनल आंसर में मैंने ओमेगा नॉट एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट अपॉन ओमेगा स्क्वायर को एम्पलीट्यूड ए माना है, ठीक है. और ये भी आंसर अभी ड्यू था करने के लिए कि क्यों हमने एम्पलीट्यूड को माना है, जो भी करेंगे, ठीक है. एंड बेसिकली ये इक्वेशन क्या बता रहा है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल और स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन x. हर एक पोजीशन x के लिए ना स्पीड डिफाइंड है, ना उससे कम होना है ना उससे ज़्यादा होना है, कभी अलग नहीं होगा. जैसे x इक्वल्स टू 0 अगर मैं पुट कर दूँ तो वेलोसिटी a ओमेगा ही होगा और कुछ नहीं.
न इससे कम न इससे ज़्यादा, ए ओमेगा। एक जब पार्टिकल a/2 को पास कर रहा होगा तो कितना होगा एक्स इस वेलोसिटी उसमें, ठीक है। कहीं पे भी a/2 प्लस माइनस है ये, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि स्क्वायर है ना। तो ये रहा a/2 और ये रहा -a/2। यहाँ पे दो पॉसिबल डायरेक्शन है, राइट में या लेफ्ट में। यहाँ भी दो पॉसिबल डायरेक्शन है, राइट को या लेफ्ट को। लेकिन a/2 पे स्पीड होगा कितना, तो ये फिक्स है, √3v/2, बीट एनी डायरेक्शन। दोनों पोजीशन पे यही स्पीड रहेगा, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, ठीक है। सेम इज ट्रू फॉर एनी अदर वैल्यू, जैसे x इक्वल्स टू +-a/√2। बताओ v कितना आ रहा है। हाउ मच इज v कमिंग? a/√2 आ रहा है क्या, सॉल्व हो करके? Yes, sir. Yes, sir. सो दिस स्पीड कहाँ पे होगा ये? सो +a/√2 और -a/√2 ये दोनों पोजीशन पे होगा ये स्पीड। और किस डायरेक्शन में होगा? तो इन एनी डायरेक्शन, राइट और लेफ्ट, ठीक है। एनी डायरेक्शन मतलब दो ही, राइट या लेफ्ट साइड पे किधर भी जा रहा होगा इसी स्पीड के साथ जाता हुआ दिखेगा। तो ये फॉर्मूला ये कंफर्म कर रहा है कि पोजीशन अगर पता है तो उस जगह का वेलोसिटी डिफाइंड है, ठीक है। we will say that there is unique value of v for unique value of x। और SHM खुद में भी यूनिक है, यूनिक इन द सेंस when you say it is moving between -a to a and angular frequency is omega, so almost everything is fixed, ठीक है। कैसे होता है वो भी समझेंगे हम लोग। ओके, इस क्वेश्चन में क्या एरर पकड़ा सबने? एक्चुअली शायद आई थिंक इसका आंसर बी बताया था ना, सॉरी सी बताया था, ठीक है, कि बुक में सी दे रखा है, तो मैंने बोला था कि वेरीफाई करना है इसे। तो देखो क्या था, मैंने दूसरी जगह चेक किया था, तो एक्चुअली ये वाला फैक्टर को चेंज किया हुआ है। F0 जिसमें सी आंसर किया है ना, उसमें ये F0 B/m ऐसे करके लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तब जा करके सी आंसर दिया उसने, ठीक है। वो भी क्योंकि जैसे बेस्ट ऑफ द 4 आंसर करना रहता है, तो उसके हिसाब से ये आंसर सी था। लेकिन यहाँ पे ये दोनों F/mb ही है, इसलिए इन दोनों B और C में चूज करेंगे तो B विल बी द बेस्ट आंसर कंपैरेटिवली। Okay, so third point in the same flow will be to find the position. So we'll start with the velocity. V equals to omega root under a square minus x square. मुझे x निकालना है. So what should I write in the next line? Yes, what should I write in the next line? V की जगह क्या लिखेंगे? dx upon dt root under a square minus x square, ठीक है. What would be the next line? Vaishnav?
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को डिनोमिनेटर में लाया। वेरी गुड। एक तरह के वेरिएबल को एक तरफ लेके आना है, सो dx अपॉन रूट अंडर दिस। अभी आपको इसका इंटीग्रेशन नहीं पता है, इसके बाद हमें इंटीग्रेट करना है इस तरह से। टाइम विल गो फ्रॉम 0 टू t एंड पोजिशन विल गो फ्रॉम x0 टू x। रिमेंबर t इक्वल्स टू 0 पे हमने x0 पोजिशन लिया था। इसका इंटीग्रेशन तुम्हें नहीं पता है, ठीक है, बट मैं इसका यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि कैसे ये निकल के आता है। साइन इनवर्स x अपॉन a, पहले तो रिजल्ट देख लो क्या है। एंड यू बीइंग मैथ्स स्टूडेंट तो आपको ये सब पता होना चाहिए, मतलब आगे पता लगेगा भी, और जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। पहले तो रिमेंबर ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, ये सब याद रखना होता है पहले, फिर कैसे आता है उस पर बात करते हैं। तो हमारे पास एक रिडक्शन फॉर्मूला है, ठीक है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि जो एक्सप्रेशन होता है उसे सिंप्लीफाई करें। तो यहाँ पे ना हम x इक्वल्स टू पुट कर सकते हैं a साइन थीटा या a कॉस थीटा, ठीक है। मुझे चाहिए dx भी, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है जिसमें हम मान के चल रहे हैं। तो a कॉस थीटा इंटू डी थीटा आएगा क्या? सब्स्टिट्यूट जरा करो, तो dx के जगह a cos थीटा डी थीटा ऐसे लिखोगे। नीचे में जरा एक्स स्क्वायर x के जगह सब्स्टिट्यूट करो, क्या आएगा डिनोमिनेटर? एक बार में लिखना चाहता हूं, क्या आएगा बताओ? कॉस से a cos थीटा आ रहा है क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा डिनोमिनेटर में। यस सर। दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन लेके बाहर करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बी कॉस स्क्वायर थीटा, रूट कवर है तो कॉस थीटा आ जाएगा। सो वी आर गेटिंग a कॉस थीटा डी थीटा इक्वल्स टू a कॉस थीटा। अभी कॉस थीटा ये सब इंटीग्रेशन के अंदर है, कैंसिल आउट होगा अभी। सो आई एम लेफ्ट विथ दिस एंड देयरफॉर दिस। अभी थीटा यहां से वापस देखो, तो क्या साइन थीटा एक्स अपॉन ए है, तो ट्रिगो हो चुका है तुम लोगों का। क्या साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आ रहा है थीटा बराबर? Yes, sir. यस सर। सो फॉर्मूला समझ में आ गया ना? फॉर द टाइमिंग तुम्हें याद रखना है, बाकी जब आपका इंटीग्रेशन होगा तो आप बिल्कुल अच्छे से ये सब चीज़ समझ चुके होंगे तब तक, ठीक है। बट जो मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे हुआ। सो साइन इनवर्स एक्स अपॉन कैपिटल ए, लिमिट जाएगा एक्स नॉट से लेकर के एक्स तक, ओमेगा इंटू टी, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस साइन इनवर्स एक्स नॉट अपॉन ए इक्वल्स टू ओमेगा टी। आपको पता है कि साइन इनवर्स जो होता है वो एक एंगल होता है, ठीक है ना। बताओ साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 इक्वल्स टू हाउ मच? 45 डिग्री। So it's an 45. angle, right? So this is an angle. So I can further write it as x upon a equals to omega t plus sin inverse x naught upon a। आपको पता है कि x naught इनिशियल पोजीशन होता है और ये साइन इनवर्स के फॉर्म में है, तो ये एक एंगल है, इसे हम अज्यूम कर लेंगे डेल्टा। तो बेसिकली ओमेगा टी प्लस डेल्टा, जहाँ पे डेल्टा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स नॉट अपॉन ए। थोड़ा और अच्छे से इसको सिंप्लीफाई करके लिख ले, तो साइन डेल्टा इक्वल्स टू एक्स नॉट अपॉन ए ये है, जो कि नोन टर्म होना चाहिए, इनिशियल है तो हमें पता होता है। फर्दर एक्स अपॉन ए मतलब सीधा सीधा आपको समझ में आ जाएगा ये। कैन वी राइट इट लाइक दिस? है ना,
ये वाला साइन Yes, को sir. हम दूसरे तरफ ले जाएंगे, साइन इनवर्स को, उसके बाद x अपॉन ए था, तो वहां से x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा आ गया, वेयर डेल्टा इज व्हाट, साइन डेल्टा इक्वल टू x नॉट अपॉन ए, एंड डेल्टा वी कॉल इट इनिशियल फेज, इनिशियल एंगल और फेज डिफरेंस, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या बता रहा है तुम्हें, इनिशियल फेज बता रहा है और इनिशियल एंगल बता रहा है। अभी भी ये एंगल कहाँ है वो क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, बट ठीक है, इक्वेशन तो यही आ रहा है ना। सो इफ आई समराइज द थिंग्स इन अ क्विक वे, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, पोजिशन ऑफ द पार्टिकल। वेलोसिटी का दो इक्वेशन आ जाएगा अब, एक एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन और x को इसके अंदर रख देंगे हम, तो v इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी भी आ जाएगा। तो नीचे वाला एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है और ऊपर वाला एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन है, ठीक है। आ रहा है क्या, चेक किया, x को यहां पे सब्स्टिट्यूट करके चेक करोगे तो ये आ जाएगा। एंड द थर्ड वन इज a इक्वल्स टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, विच कैन फर्दर बी रिटन एज ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। नाउ इफ आई से a particle has an acceleration of the format of माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स करके, तो आप सीधा कंक्लूड करेंगे कि वो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, ठीक है। देखो, हार्मोनिक मोशन बोलना और सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलना ये दोनों अलग अलग चीज है। सिंपल वर्ड का मतलब आपको पता है, हार्मोनिक का मतलब ऑक्सिलेटरी से होता है। तो इफ आई से हार्मोनिक मोशन, इट मीन्स दैट इज नॉट नेसेसरली अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। Harmonic मतलब oscillatory motion. Now, a special case of that harmonic motion is your simple harmonic motion. So, am I clear with something? कुछ चीजें तो यहाँ पे clear है अभी. Now, we'll address the question why I took omega square equals to root under k upon omega square equals to k upon m हमने क्यों माना था? चलो, ये एक्सरसाइज तुम लोग कर सकते हो, ये डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है एक। फाइंड ए एंड बी इफ ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू k to the power a and omega is proportional to m to the power b, that is omega is proportional to k to the power a m to the power b. याद करो डायमेंशनल एनालिसिस। It has been observed that the frequency of oscillation depends on the spring constant and the mass of the body, ठीक है। Then what is A and B? सॉल्व कीजिए जरा इसे। वेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, के फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यूनिट की बात करें तो न्यूटन अपॉन मीटर होता है, नॉट मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन मीटर होता है। एम इज द मास ऑफ द बॉडी। Omega is the angular frequency. So what is the dimension of omega? What is the dimension of omega? T power minus 1. T minus 1. So we'll go with the dimensional formula. तो दोनों तरफ डायमेंशन लगाएंगे, तो ओमेगा ऑफ
के एम लाइक दिस, इसमें भी सब्स्टिट्यूट कर दें तो न्यूटन मीटर, सो एम एल टी माइनस 2 अपॉन एल होल टू द पावर ए, और मास का मतलब m टू द पावर b, t to the power minus 1. Further, t to the power minus 1 equals to m to the power a plus b, l तो ख़त्म हो जाएगा, ये l ख़त्म हो रहा है, and t to the power minus 2a. When I equate the powers, minus 2a equals to minus 1, तो a equals to इतना आ गया, And B is minus 1 by 2. b is minus 1 by 2, yes it is. So b equals to minus 1 by 2. ठीक है, therefore omega equals to some constant, let's say z, root under k upon m आ गया, where k can be found experimentally, और एक्सपेरिमेंट करके पाया गया कि z का वैल्यू 1 होता है. सो ओमेगा इक्वल्स टू k अपॉन m. कैसे आया ये क्लियर हो गया, क्यों माना था हमने. Yes, sir. तो देखो एक्चुअली स्टोरी स्टार्ट ही यहाँ से होता है कि हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. व्हाट इज दैट एक्सपेरिमेंट? इन दैट एक्सपेरिमेंट हम ब्लॉक को फिक्स करके एक ही मास रखेंगे और अलग अलग के रखेंगे, स्प्रिंग चेंज करते रहेंगे और फ्रीक्वेंसी को चेक करेंगे. तो ऑब्वियसली ये दिखेगा कि जिसका के ज़्यादा होगा वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, स्पीड ज़्यादा होगा. ठीक है, और इसलिए टाइम पीरियड कम हो जाएगा इसका. ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, कहने का मतलब ये फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा अगर के को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो. वैसे ही के को फिक्स कर देते हैं, स्प्रिंग को फिक्स कर दो और मासेस को चेंज करो, एक हेवी मास ले लो, एक लाइट मास ले लो, तो क्या होगा, लाइट मास पे ज़्यादा फोर्स आएगा, सॉरी लाइट मास फोर्स तो एक ही आएगा के सेम होने की वजह से, लेकिन लाइट मास का एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा. एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो फिर से वो फास्ट हो जाएगा, और फास्ट होने का मतलब होगा नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड ज़्यादा हो जाना. तो मास कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगा. सो ओमेगा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. अब ये करने के बाद डायमेंशनल एनालिसिस से सॉल्व कर लिए. ठीक है, सो व्हाई वी टुक दिस, वो प्रूफ हो गया. एक और चीज लिया था हम लोगों ने, प्रूव दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, सॉरी वी नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर. एम्पलीट्यूड है ए, वी नॉट इनिशियल पोजिशन है और एक्स नॉट इनिशियल पोजिशन है और वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी है. इन सब पे डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड. ठीक है, सो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने वाले हैं, क्योंकि एसएचएम में कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा होता है. ठीक है, तो ये रहा पोजीशन 1 और दूसरा पोजीशन एक्सट्रीम ले लो. अगर आप चाहो तो बीच में भी कोई पोजीशन ले लो 2 एंड पोजीशन 3. सो टोटल एनर्जी एट बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, energy at 1, energy at 2, energy at 3. I would like to write the energy at 1. It is half m v naught square plus half k x naught square, half m v square plus half k x square. ये जनरल पोजीशन कोई लिया t टाइम पे, ये t इक्वल्स टू 0, ये जनरल टाइम t पे अभी एक्सट्रीम नहीं पहुंचा है, और फिर जब एक्सट्रीम पे पहुंचेगा तो एक्सट्रीम पे वेलोसिटी तो 0 होता है और वहां पे x a के बराबर होता है, ऐसा. अब पहला टर्म और लास्ट टर्म को आपस में इक्वेट कर दो तो हाफ कैंसिल आउट हो रहा है. एम वी नॉट स्क्वायर प्लस के एक्स नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू के ए स्क्वायर, के भी कैंसिल हो रहा है, ऐसा.
So a square equals to x square plus v naught square upon omega square, since omega square equals to k upon m. तो इस सॉल्विंग से तुम्हें यह भी समझ में आए कि हम इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगाते हैं, एंड इट इज प्रूव्ड. ठीक है. तो क्यों इस टर्म को हमने एम्पलीट्यूड लिया वो क्लियर हो चुका है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से. और सुनो, अगर हम प्रैक्टिकली इस बात को रियलाइज करें तो मैंने आपको ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दे दिया, तो ये तो एसएचएम में नहीं था, बस दे दिया तुम्हारे हाथ में. नाउ यू आर द एजेंट हु विल set it into SHM. So what you will do to make it into the motion? आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं जिससे ये मोशन में आ सकता है. तो what I can do is कि हम इसे यहां तक पुल कर लेते हैं और सीधा छोड़ देंगे. अभी पुल करके रखा है, ठीक है. पहला मेथड है कि मैंने पुल एंड लीव. तो लीव करते समय व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? इट वाज 0. इसका मतलब ये हुआ कि यहां से छोड़ने पे डायरेक्ट ये लेफ्ट साइड जाएगा और ये फिर लेफ्ट एक्सट्रीम पे जाके रुकेगा और फिर लौटेगा, मतलब यहीं से ऑक्सीलेशन चालू हो जाएगा. तो क्या इस केस में आप मानते हो कि एम्पलीट्यूड ए जो है वो x नॉट है? Yes, sir. जहां से छोड़ा वही एम्पलीट्यूड इसका बन गया. यस इट इज. दिस इज वन वे ऑफ सेटिंग द सिस्टम इनटू मोशन. छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देना है, पकड़ के खींचना है और छोड़ देना है. जहां था वहां से बस छोड़ देना है. तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी टेकन एट 0 बिकॉज इट वाज एट रेस्ट व्हेन आई वाज होल्डिंग इट एट x नॉट. राइट. सेकेंड मेथड कुड बी कि आप खींचो ना, बल्कि आप यहां पे इसे किक करो. जो मेन पोजीशन पे ब्लॉक है ना उसमें किक करो. किक करने से क्या आएगा? वेलोसिटी v नॉट आ जाएगा क्या? Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट कितना है अभी? 0. 0. 0. किक एट मीन पोजीशन. तो यहां x नॉट 0 है लेकिन v नॉट है कुछ. हम ये भी मानते हैं क्या कि जितना ज्यादा जोर से वेलोसिटी देंगे उतना ही दूर जाके रुकेगा और वापस लौटेगा? सो इसका मतलब वेलोसिटी विल बी डिसाइडेड बाय द एम्पलीट्यूड विल बी डिसाइडेड बाय द वेलोसिटी इनिशियली गिवन, एंड दैट इज दिस वन. इसी फॉर्मूले से बात कर रहे हैं. तो x नॉट को 0 कर दिया मैंने. ठीक है. एंड नाउ लार्जर द वेलोसिटी लार्जर इज द मीन पोजीशन. Third method, pull and kick both. जो पुल किया था ना उसके बाद इसे फर्दर और थोड़ा फ्लिक कर देते हैं. जहां पे था वहां से थोड़ा और वेलोसिटी v नॉट भी इंपार्ट कर देते हैं. तो आप मानेंगे ना कि अभी ये थोड़ा और पीछे जाएगा, रुकेगा, तब लौटेगा. आई रिपीट, पुल किया और पुल करके सिंपली छोड़ा नहीं बल्कि इसे और किक किया आउटवर्ड में. ठीक है. अभी मैंने पहले भी समझा रखा है, इनवर्ड किक करो या आउटवर्ड किक करो दोनों एक ही बात होगा. समझने के लिए मैंने इसे आउटवर्ड डायरेक्शन में v नॉट से और किक कर दिया. तो x नॉट भी है, v नॉट भी है, एंड आई नो दैट इट विल स्टॉप समवेयर एल्स, देन इट विल कम बैक. सो नाउ अगेन दिस टाइम द एम्पलीट्यूड डिसाइडेड बाय बोथ पोजीशन एज वेल एज इनिशियल वेलोसिटी. तो इस केस में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ये पूरा हो जाएगा. जस्ट गो थ्रू दिस वंस. और आपके मन में और कोई आइडिया आ रहा है तो बताओ मुझे. आई नीड टू पुट इट इनटू मोशन. हाउ कैन वी डिस्टर्ब इट? मैंने 3 मेथड समझाया है. इफ यू हैव एनीथिंग एल्स यू कैन टेल मी. Sir, push and leave. पुश You can backward. तो
देखो बैकवर्ड में मतलब मीन पोजीशन के तरफ पुश करके छोड़ना ना। Yes. मतलब कॉम्प्रेशन। हाँ तो लेकिन उसमें भी ये ज्यादा जहां पे ये एक्स नॉट है वहीं पे दूसरे तरफ जाके रुकेगा या उससे ज्यादा जाके रुकेगा? उससे ज्यादा ही जाकर के रुकेगा ना। when Yes, you sir. pull and push it on the back side, अगर आप सीधा सीधा छोड़ देते तो एक्स नॉट पे जाके रुकता, लेकिन तुम छोड़ नहीं रहे हो, थोड़ा और वेलोसिटी दे रहे हो, तो क्या एक्स नॉट पे रुकेगा? एक्स नॉट से ज्यादा पे जाकर के रुकेगा। तो ये एम्पलीट्यूड वही होगा जो मैंने राइट साइड से समझाया तुम्हें, ठीक है? तो ये वी नॉट तुम राइट साइड दो या लेफ्ट साइड दो, एम्पलीट्यूड वही आना है, अलग नहीं आना है, ठीक है? तो बेसिकली देखा जाए तो यही 3 तरीके से हम सिस्टम को सेटअप करते हैं मोशन में। एंड यू मस्ट रिमेंबर दैट व्हेन आई डू इट, मतलब जब हम इसे मोशन में डालते हैं तो एक्चुअली आई एम पुटिंग एनर्जी इनटू द सिस्टम, एम आई राइट? वेलोसिटी देना मतलब काइनेटिक एनर्जी मैंने इंपार्ट कर दिया, पुल करना मतलब मैंने स्प्रिंग एनर्जी इसमें इंपार्ट कर दिया है। सो बेसिकली आई एम पुटिंग एनर्जी इनटू द सिस्टम, and this energy, this initial energy which we have given to the system is going to be fixed, constant in the system, because we are not considering any kind of loss. तो फिर ये एनर्जी का क्या होगा? तो ये एनर्जी काइनेटिक एंड पोटेंशियल में इंटरचेंज होता रहेगा, ठीक है? चलो वापस एक बार देख लें क्या क्या किया मैंने। सो पोजीशन का एक डेरिवेशन किया, फेज वेज के ऊपर अच्छे से बात करेंगे। सो फार वी अंडरस्टूड कि व्हाट काइंड ऑफ मोशन विल एक्सप्लेन द एसएचएम, ठीक है? उसके बाद क्यू मैंने ओमेगा स्क्वायर बराबर के अपॉन एम माना था, ये फॉर्मूला रट लेना है, ठीक है? उसका एक डायमेंशनल एनालिसिस से प्रूफ करके दिखाया कि क्यों हमें मानना है, जिसे हम सीधा सीधा बोलते हैं एक्सपेरिमेंटली दिस हैड बीन दिस केम। उसके बाद एम्पलीट्यूड का इनिशियल कंडीशन के साथ रिलेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिल्कुल आराम से यूज कर सकते हैं। कहां पे लगाया है? इनिशियल और एक्सट्रीम के बीच में। क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड कब अचीव होगा? जब एक्सट्रीम पे पहुंचेगा। तो इसका मतलब इनिशियल और एक्सट्रीम के बीच में हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, और वो लगा करके हमने ए का वैल्यू निकाला था, ठीक है? तो अगेन ये याद रखना है। Can we do some questions now? इनमें से कौन एसएचएम इक्वेशन है ये बताना है हमें। ए बी सी डी ई, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एसएचएम इक्वेशन? वाई को आप एक्स ही समझेंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इफ दे हैव। तो सबसे पहले तुम्हें यह समझना है कि अगर हम किसी को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या होगा? तो उसका फॉर्मेट एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा का फॉर्मेट होगा, जहां पे ये जो साइन है ना वो लीनियर फॉर्म में है। डू यू एग्री विद दिस? पावर क्या है यहाँ पे साइन के ऊपर? 1 है ना? साइन स्क्वायर थीटा भी आप जानते हो, साइन क्यूब थीटा भी जानते हो आप,
बट यहाँ पे साइन थीटा है सिंपली। एम आई राइट गाइस? और आपको ये भी पता है कि साइन और कॉस दोनों एक ही फंक्शन है, केवल फेज का फर्क होता है 90 डिग्री का। यस नो? तो साइन एंड कॉस दोनों में से कोई भी अगर फंक्शन में रहा तो वो एसएचएम इक्वेशन होगा, बट कंडीशन है कि वो लीनियर होना चाहिए। ठीक है? और क्या हो सकता है कंडीशन? तो अगर कोई इक्वेशन इसे सेटिस्फाई कर रहा है तो भी हम कहेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है, एसएचएम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है? तो या तो फॉर्मेट आए, अगर फॉर्मेट नहीं है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ठीक है? नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, देखो आई कॉम्प्लेक्स नंबर का आइटा है ना? आई इक्वल टू रूट अंडर -1 होता है, एवरीवन नोज दिस। ए, तो सबसे पहले तो ये इक्वेशन रियल इक्वेशन है ही नहीं, इमेजिनरी फंक्शन है, मतलब ये इमेजिनरी फंक्शन हो गया, प्रैक्टिकली रियलाइज नहीं हो रहा है। क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. मतलब हम अपने रियल लाइफ में ऐसा फंक्शन, ऐसा बिहेवियर कोई पार्टिकल का नहीं देख पाएंगे, बट मैथमेटिकली तो कुछ भी कर सकते हैं। आइटा यूज कर लिए तो हम इमेजिनरी वर्ल्ड में कुछ भी अब कर सकते हैं। सो आई नीड टू चेक आउट वेदर दिस इज अ पार्टिकल, दिस इज अ इक्वेशन ऑफ एसएचएम और नॉट। सो व्हाट शुड आई डू? तो एक तो इक्वेशन देख करके तो नहीं लग रहा है, क्योंकि जो हमने पढ़ा है वो तो साइनोसाइडल है, बट फिर भी चेक करते हैं, क्योंकि जो पढ़ा है वो रियल सिचुएशन में पढ़ा है। ठीक है? और यहाँ तो इमेजिनरी सिचुएशन दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले को सेटिस्फाई कराने का कोशिश करेंगे, मतलब एक्सेलरेशन निकालो तुम। ठीक है? तो एक बार डिफरेंशिएट कर दो इसे, v बन गया, क्या आ रहा है ये? तो आई ओमेगा ए ई टू द पावर माइनस ओमेगा, सॉरी नॉट माइनस, इट इज आई ओमेगा टी। सबको ये डिफरेंशिएशन क्लियर है? गो टू द एक्सेलरेशन, मतलब dv अपॉन dt करने का है तुम्हें, करके देखो। तो आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए ई टू द पावर आई ओमेगा टी, व्हाट इज आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 ओमेगा स्क्वायर ए ई टू द पावर आई ओमेगा टी। अच्छा, a into e to the power I omega t is y. So do you think that a is coming as minus omega square y? तो ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या SHM को? Yes. Yes, Yes, sir. it is. बट रियली में क्या हम अचीव कर पाएंगे इसे? आंसर इज नो। ठीक है? प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसे रियलाइज नहीं कर पाएंगे। मैथमेटिकली ये जस्टिफाई कर रहा है कि ये एक एसएचएम इक्वेशन है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर सी, बी छोड़ रहा हूं क्योंकि उसमें आई नहीं है तो वो एसएचएम नहीं आएगा। चलो बी करके देख लेते हैं फटाफट। y इक्वल्स टू, यही प्रोसेस रहेगा, ए ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी, एक बार ही डिफरेंशिएट कर दिया तो माइनस ओमेगा ए ई टू द पावर ओमेगा टी, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो a, सो माइनस ये ओमेगा स्क्वायर ए ई टू द पावर ओमेगा टी आ रहा है, तो ये ओमेगा स्क्वायर वाई आ जा रहा है। क्या ये एसएचएम है? क्या ये एसएचएम है? क्यों एसएचएम नहीं है बताओ मुझे? क्योंकि माइनस साइन नहीं आया है यहाँ पे। ठीक है ना? तो ये क्या बता रहा है इक्वेशन कि x के जगह आप y ले सकते हो अब। ठीक है? तो ये रहा y इक्वल्स टू 0। ये बताना ये चाह रहा है कि अगर y पॉजिटिव है तो इसका एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा, और जितना ज्यादा होगा y उतना ही ज्यादा a होगा। तो ये मीन पोजीशन की तरफ तो डायरेक्टेड नहीं है एक्सेलरेशन, जबकि एसएचएम में क्या होना चाहिए? पार्टिकल शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, नीचे होना चाहिए था। सो दिस इज नॉट एन एसएचएम। क्या ये बात सबको क्लियर है? कोई फिर से पूछेगा यहाँ पे, व्हाई दिस इज नॉट एन एसएचएम? Because the acceleration is not directed towards the main position. Yeah, acceleration and displacements are not opposite to each other.
they are in the same direction. That's why it is not an SHM. For SHM, acceleration and displacement has to be opposite to each other. Third one, साइन स्क्वायर. कुछ बुक्स इसको SHM बोल देता है, बट सही में देखा जाए तो ये SHM नहीं है. ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी. ठीक है, ये हार्मोनिक है, बट नॉट SHM. ठीक है, उसके पीछे तो मैं सिंपल लॉजिक दूंगा कि साइन के ऊपर जो पावर है ना वो 2 है, 1 होना चाहिए था. अगर ये ऐसे रहता ए साइन ओमेगा टी, तब हम इसे बोल देते कि ये SHM है, लेकिन यहां पे स्क्वायर है. ठीक है, साइन का ग्राफ आता है सभी को, बिल्कुल आता होगा. Yes, sir. ठीक है, ये है साइन एक्स का ग्राफ. साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ कैसा होता है? साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ कैसा होगा? तो साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होगा केवल. सो इट मूव्स लाइक दिस. आई होप यू नो दिस. हाँ, Yes, sir. यस, 0 से लेके 1 के बीच में साइन स्क्वायर का ग्राफ है. तो ये ऑक्सिलेटरी तो है, ठीक है, लेकिन जो पैटर्न इसका लीनियर में होता है, मतलब साइन एक्स का जो लीनियरिटी चलता है, वो चीज़ साइन स्क्वायर में नहीं दिखता है. ठीक है, तो ऑक्सिलेटरी है ये, बार बार रिपीट तो कर रहा है ये मोशन अपने आप को साइन स्क्वायर, लेकिन ये SHM का पैटर्न में नहीं है, उससे अलग पैटर्न होता है स्क्वायर होने की वजह से. ठीक है, सो इसलिए मैंने बोला कि ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी एक ऑक्सिलेटरी तो है, बट SHM नहीं होगा. ठीक है, इसका एक प्रूफ जो है वो वहीं से है, डबल डिफरेंशिएशन करके आगे बढ़ना. दूसरा, आप अगर ट्रिगो से सोचोगे तो आप ये कह सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस 2 थीटा में ले जाते हैं. y इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला है ना तुम्हारे पास, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2. सो a 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, y इक्वल्स टू a बाई 2 माइनस a बाई 2 cos 2 omega t. Are you getting this? ये SHM है या नहीं है? साइन या कॉस दोनों में रहता है तो SHM हो सकता है, प्रोवाइडेड दोनों के ऊपर पावर 1 होना चाहिए. साइन या कॉस के ऊपर पावर 1 होना चाहिए. बताओ ये SHM है या नहीं है? Yes, try. तिलक राज, आवाज तो नहीं आ रहा है. सो दिस इज एन SHM. ठीक है, दिस इज SHM. लेकिन फिर ये पहला इक्वेशन क्यों SHM नहीं है? अब कोई बता सकता है? क्योंकि फंक्शन सब तुम लोगों ने पढ़ रखा है, इनइक्वलिटी भी सर ने पढ़ा रखा है तुम लोगों को. आपको पता है ना, इनइक्वलिटी सॉल्व करते हो x का पूरा वैल्यू रेंज आ जाता है, लेकिन फिर फाइनली क्या आप मेन इक्वेशन जो दे रखा होता है उसमें चेक करते हो कि कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है गिवन इक्वेशन को? Yes, sir. या जो आता है लास्ट में आंसर, सबका सब आंसर कर देते हो? आपको पता है ना कि कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के बाद ये डोमेन चेंज हो जाता है तुरंत का तुरंत. यस, एवरीवन नोज दिस.
y इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, क्या दोनों का डोमेन सेम है? मतलब वैल्यू ऑफ x, अरे किधर हो बताओ फटाफट। No, sir. दो इक्वेशन दिया है, y इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स, वो भी 1 ही हो जाता है, लेकिन क्या दोनों का डोमेन इक्वल है? तो बिल्कुल No, sir. ऊपर वाले का ऑल रियल नंबर है डोमेन्स में, ठीक है, जबकि नीचे वाले में जहां जहां पे जीरो आ रहा है वो नहीं होगा, है ना। जीरो विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डोमेन, पाई विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम, मतलब 2 and पाई विल बी n पाई विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डोमेन, राइट। तो हमें ये बात पता है कि कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के बाद डोमेन चेंज हो जाता है तो मेन इक्वेशन जो रहेगा उसके हिसाब से ही हमें फाइनल आंसर करना रहता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है। क्वेश्चन गिवन बाय साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो क्या वो एसएचएम में है? तो आप यहाँ पे कन्वर्ट कर दे रहे हो, एक इक्वेशन एसएचएम में आ रहा है, लेकिन क्या हम इस बेसिस पे कह देंगे कि पहला इक्वेशन एसएचएम में था? आंसर इज नो, ठीक है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में ये पूछा जाता तुमसे, इज y इक्वल्स टू a बाई 2 माइनस a बाई 2 cos 2 ओमेगा t इज एसएचएम, व्हाट इज योर आंसर, यस और नो? तो आंसर होगा यस, इट इज यस विथ फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा, 2 ओमेगा के साथ ये फ्रीक्वेंसी में है, एंड एम्पलीट्यूड a बाई 2, उस ऑक्सीलेशन का, वो एसएचएम का एम्पलीट्यूड कितना है, तो कॉस फंक्शन में जो यहाँ पे रहता है केवल वो देख करके आप बताएंगे। a बाई 2 विल बी द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी विल बी द कोफिशिएंट ऑफ t, दैट इज 2 ओमेगा। x का पावर, कॉस का पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, तो ये एसएचएम में है। लेकिन अगर मैं पूछूं तुमसे कि y इक्वल्स टू a साइन स्क्वायर ओमेगा टी एसएचएम है क्या, व्हाट इज योर आंसर? It is not an SHM, and why not? Power of sin is not 1. ठीक है ना। तो ओरिजिनल इक्वेशन से हमेशा हम गाइडेड रहेंगे, उसी के हिसाब से हम चलेंगे हमेशा। सो आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर हियर। अच्छा, जो a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, उसमें से भी हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे उसके थ्रू, तो भी नहीं आने वाला है, ठीक है। 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, एक बार करके देख भी लेते हैं वो चीज़। Also y equals to a sin square omega t, so v equals to 2a sin omega t cos omega t, और एक ओमेगा भी बाहर आएगा। ये डिफरेंशिएशन सबको समझ में आ गया? चेन रूल से किया है मैंने। यू कैन फर्दर राइट इट एज a ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू a ओमेगा इंटू 2 ओमेगा इंटू कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक है। अभी ये सीधा सीधा y के फॉर्म में तो जा नहीं रहा है, मतलब माइनस तो आया भी नहीं। 2 ओमेगा स्क्वायर a कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी, ऐसा आ जा रहा है इक्वेशन। तो क्या मैं इसे ओमेगा a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पा रहा हूं, यस नो? तो आंसर इज नो, आई एम नॉट एबल टू कन्वर्ट इट इनटू दिस फॉर्म, ठीक है। थोड़ा और इसे आगे बढ़े, स्क्वायर में मतलब y में अगर ले जाना चाहते हैं तो साइन 2 थीटा बराबर, सॉरी कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, राइट। तो उस फॉर्मेट में अगर हम ले जाएं तो a बराबर 2 ओमेगा स्क्वायर a 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर ओमेगा टी ऐसा लिख डालेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर दें 4 ओमेगा स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू ए। अभी भी देखो प्रॉब्लम क्या है वो समझो कि जो एक्सेलरेशन है ना इसमें भी ये साइन आ गया है, ठीक है, और साइन स्क्वायर आ गया है, और साइन स्क्वायर नहीं होना चाहिए हमारे एसएचएम इक्वेशन में कहीं भी, ठीक है, ना वेलोसिटी में होना चाहिए, ना एक्सेलरेशन में होना चाहिए, ना वाई में होना चाहिए साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर। तो क्योंकि वाई एक्सेलरेशन में भी साइन स्क्वायर आ जा रहा है, सो दिस विल नॉट बी अ एसएचएम इक्वेशन। एनी क्वेश्चन? डी, ये तो ट्रिगो का है, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। क्या ये एसएचएम है? तो यस, दिस इज एन एसएचएम, दिस इज एसएचएम, और यहाँ पे असल में दो एसएचएम का कॉम्बिनेशन है, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम इज ऑलवेज एसएचएम, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम कैसे होता है ये सब बताऊंगा आगे। कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम इज ऑलवेज अ एसएचएम, ठीक है। तो आप इसे दो एसएचएम के जैसा देख सकते हो, एक का एम्पलीट्यूड ए है, दूसरे का एम्पलीट्यूड बी है, और दोनों कंबाइन हो गया यहाँ पे, प्लस या माइनस दोनों से कंबाइन हो सकता है, और कंबाइन होने पे जो रिजल्ट आएगा वो एक एसएचएम ही देगा। नाउ यू रिमेंबर वन फॉर्मेट इन ट्रिग्नोमेट्री जहाँ से y का मैक्सिमम वैल्यू निकालते थे, वो कौन था a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। इसे बताओ कैसे लिखते थे आप? ऐसा लिखते हो ना, बताइए मुझे। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी पे ले जाते हैं हम लोग। यहाँ पे tan फाई इक्वल्स टू बी अपॉन ए लिखते हैं। यस वैष्णव, पता है ये कैसे आता है? सर मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है, ये साइन थीटा प्लस फाई वो ये नहीं आता है, ये कैसे आता है ये नहीं पता है। ट्रिगो हो गया है ना, यस सर। पूरा ट्रिगो हो गया है। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ए साइन थीटा अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कॉस थीटा अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ठीक है, multiplied and divided by root under a square plus b square. This is how we did it. Now ये जो टर्म है ना इसे हम sin phi बोलेंगे, cos phi बोलेंगे, और ये जो टर्म है इसे हम sin phi बोल देंगे। अपने आप हो जाएगा, मतलब एक को मानेंगे तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। सो लेट cos phi equals to a upon रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो एक ट्राइंगल बना करके अगर मैं सोचूं, सो ये एंगल फाई है, तो ये a है और ये रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b है, तभी ना आएगा cos phi इक्वल्स टू दिस मच a अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो सामने वाला परपेंडिकुलर साइड क्या है, b है क्या? Yes. अभी इस ट्राइंगल से देखो तो ऑटोमेटिकली साइन फाई b अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जा रहा है, और tan फाई इसी ट्राइंगल से देखो, tan फाई क्या आ रहा है, b अपॉन a आ रहा है। तो देखो यहाँ पे मैंने ये रखा, tan फाई जो है वो b अपॉन a होता है। अब अगर मैं इसे a स्क्वायर, मतलब मैक्सिमम कैसे निकालते हो, ऐसे निकालते होगे ना, और कौन सा मेथड से निकाल दिया तुमने?
When you Yes. say, I know that maximum and minimum value of y is root under plus minus root under a square plus b square, वो इसी मेथड से निकलता है ना. यस सर, वो फाई लिखा था तो समझा नहीं. तो वहां पे क्या लिखते हो फाई की जगह पे? नहीं सर, वो आपने उसको ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फाई माना था ना, वो मुझे समझा नहीं फाई कहाँ से आया. अच्छा, ऐसे पता था कि ऐसा करते हैं. यस सर. गुड, ठीक है. तो ये रहा तुम्हारा. नाउ ये तुम्हारा साउंड वेव एंड इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये वाला टर्म्स आएगा. सो ये आपको पता भी होगा. तो यहाँ से नाउ क्योंकि यहाँ पे हम एक कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, साइन का एक सिंगल टर्म भी आ जा रहा है और साइन का पावर 1 है यहाँ पे. सो इट मीन्स दिस इज अ SHM इक्वेशन विद द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वन. ठीक है. तो ऊपर वाला इक्वेशन जो है वो एक SHM है विथ एम्पलीट्यूड रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है. ये हमारा डी पार्ट था. लास्ट पार्ट अभी जो डिस्कस किया ना उसमें एंगल या फेज कह लो तो फेज सेम था, फ्रीक्वेंसी सेम था. लेकिन ये जो लास्ट वाला ई पॉइंट है देखो, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी है. So E part is y equals to sin omega t plus cos 2 omega t. तो ये दो अलग अलग SHM तो हैं बट दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है. यहाँ मुझे फिर लिखना चाहिए था कॉम्बिनेशन ऑफ SHM ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज. ठीक है. तो यहाँ पे ना फ्रीक्वेंसी दोनों का अलग अलग है. इसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा है और इसका फ्रीक्वेंसी क्या है 2 ओमेगा. एम आई राइट गाइस? टी का जो कोफिशिएंट होता है वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है. ठीक है. तो आप इस चीज को देखेंगे कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी को हम कंबाइन नहीं कर पाते हैं. मतलब इसको मैथमेटिकली अभी सॉल्व करेंगे ना तो ये सिंगल साइन के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा. आप कोशिश करके देख सकते हो. ठीक है. बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी इन दिस फॉर्मेट कि एक सिंगल साइन आ जाए, ऐसा नहीं हो पाता है. सो इसलिए हम कहेंगे कि दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के SHM को कंबाइन करने पे वो सिस्टम एक SHM नहीं रह जाता है. ठीक है. आई रिपीट, दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के SHM को हम कंबाइन नहीं कर सकते हैं, ये ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है. कंबाइन करने पे वो कोई SHM सिस्टम नहीं रहेगा, वो बिगड़ जाता है. ठीक है. SHM बोलने का मतलब है कि दिमाग में एक चीज आ जाना चाहिए कि एक फिक्स पोजीशन हो जिसके अबाउट 2 and 4 मोशन पार्टिकल कर रहा हो ऐसे. लेकिन कोई पार्टिकल मान लो ऐसे ऐसे मोशन कर रहा हो. ठीक है. तो इसको हम SHM बोलेंगे क्या? इस तरह का कोई मोशन हो मीन पोजीशन के अबाउट तो नहीं बोलेंगे. ठीक है. सो अलग अलग फ्रीक्वेंसी होने की वजह से ऐसा कुछ होने वाला है. ठीक है. तो अलग फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, क्या ये हमें पढ़ना है? तो यस, एडवांस लेवल पे हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे बट पहले बेसिक क्लियर करके रखें, तब फिर हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे. सो आई विल आंसर इट डायरेक्टली. इट्स नॉट अ SHM. ठीक है. रीजन दे सकते हैं. सिंस टू डिफरेंट frequency SHM cannot combine to give a SHM. ठीक है. और मैथमेटिकली अगर प्रूव करना है तो तुम ये करोगे कोशिश कि माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चेक करोगे. तो आप इसे 2 बार डिफरेंशिएट कर दीजिए. ठीक है. और 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद चेक करो कि इस फॉर्मेट में फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ये फिट नहीं होगा उस फॉर्मेट में. सो इसने कोशिश किया यहाँ पे. ठीक है. लेकिन वो फिट नहीं बैठ रहा है. सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, द फंक्शन इज नॉट अ सिंपल हार्मोनिक.
ठीक है, हार्मोनिक है क्या? तो यस हार्मोनिक है, ठीक है, लेकिन हार्मोनिक में भी वो एम्पलीट्यूड वाला पार्ट नहीं होगा इसमें। यस, सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से आप यहाँ से देखो और बस एक बार ही अपने दिमाग में जरा मूव कराओ, सोचो कौन एसएचएम है और एसएचएम कौन नहीं है, क्या था प्रूफ करने के लिए एसएचएम। अगर एसएचएम प्रूफ करना है तो हमें क्या करना होता है? ठीक है ना, व्हाट आर द बेसिस फॉर सेइंग वेदर इट इज अ एसएचएम और नॉट? तो ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर हमें चेक करना रहता है, तो जो भी इक्वेशन हो उसे 2 बार डिफ्रेंशिएट करके उस इक्वेशन में फिट करो, वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। बाकी जो मैंने बोला कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी का अगर होगा तो एसएचएम कंबाइन करके नहीं देता है, तो ये मतलब इसको हम कैसे बोलेंगे कि जैसे जैसे हम स्टडी करते जा रहे हैं ना, तो ये चीज़ सामने निकल करके आएगा अभी कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी को हम कंबाइन नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ बीइंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। सेम फ्रीक्वेंसी होगा तभी हम कंबाइन कर पाएंगे और मुझे कुछ नज़र भी आएगा एसएचएम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम एक अलग से पोर्शन है जो हम लोग टच करेंगे फिलहाल। So far we understood the equation of SHM which represents simple harmonic motion. इसके अंदर में ये ओमेगा टी प्लस फाई आ रहा था और ये एक एंगल है। तो हम लोग आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कि इसके ऊपर क्या क्या न्यूमेरिकल होगा, उससे पहले बेटर है कि हम लोग ना इस बात को भी समझ लेते हैं कि थीटा है क्या, ठीक है। सो वी कॉल इट सर्कुलर इंटरप्रिटेशन। Circular interpretation of SHM. मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक पार्टिकल सर्किल में मूव कर रहा होगा और उसका साइड उसका एक SHM हम बना देंगे और हम दिखाएंगे इस बात को कि जो SHM होता है ना वो बेसिकली एक सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट करता है। तो कैसे? We are taking a circle in which a particle is moving with angular velocity omega. Take, what do you mean by UCM? In circular motion, what do you mean by UCM? Uniform circular motion of radius a and angular velocity omega, ठीक है। तो एक पार्टिकल इस सर्किल में मूव कर रहा है, इधर एक स्क्रीन लगा रहे हैं, दिस इज a screen और पार्टिकल ना यहाँ पे O पे है, t बराबर 0 पे O पे है और इधर से हम लाइट थ्रो कर रहे हैं, फ्लड लाइट,
तो स्क्रीन पे पार्टिकल का क्या आने वाला है? यस, कीप ऑन स्पीकिंग। इमेज आने वाला है, दैट इज शैडो आने वाला है। तो अभी वो ब्लैक शैडो कहां पे है? t=0 पे। इज इट एट दिस पोजिशन? Yes, sir. कॉल दिस पोजिशन एज O। इसे भी O ले लिया, इसे भी O ले लिया, ठीक है। तो अभी जो शैडो है ना वो O पे है। नाउ दिस पार्टिकल इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन like this with uniform angular velocity omega and radius a। तो जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो इस समय शैडो तुम्हें यहां दिख रहा है क्या? P एंड P। Yes, sir. ओके, जब पार्टिकल Q पे पहुंचेगा तो यू कैन सी द शैडो ऑन Q ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। तो आप ये मानेंगे कि जब पार्टिकल फर्स्ट क्वार्टर में चला है तो उसका शैडो जो है O से चल करके ऊपर Q पे पहुंच चुका है। Yes, sir. ओके, नाउ यहां Q से ये आगे बढ़ा तो शैडो नीचे आ रहा है क्या? जब ये R पे पहुंचेगा पार्टिकल सर्किल में तो शैडो कहां पे पहुंचेगा बताओ वापस? O. O पे। और शैडो का डायरेक्शन ऑफ मोशन अभी डाउनवर्ड है, यस और नो? Yes. Yes, sir. Now particle keep on moving from R to S in the third quadrant. So shadow keep on moving downside. तो यहां से शैडो नीचे जाएगा और वो भी लोअर पॉइंट को हिट करेगा, S को, इसे भी S कह देते हैं, ठीक है। नाउ इन फ्रॉम S to O अगेन द शैडो इज गोइंग अप, so this shadow is moving up, and here the particle completed one complete cycle in the circle and shadow completed one cycle on the screen. Is it clear to everyone? स्क्रीन पे जो शैडो है उसका लीनियर मोशन है, एक लाइन पे चल रहा है इस पे, जिसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? y इक्वल्स टू a, और नीचे आ रहा है y इक्वल्स टू माइनस a S पे, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो पार्टिकल सर्किल में मूव कर रहा था वो भी दिखा है। अगर इसका पूरा टाइम पीरियड t है तो बताओ मुझे O से Q पे जाने में कितना टाइम लगाया इसने इन टर्म्स ऑफ कैपिटल T? T/4. सो आप ये मानते हो कि फर्स्ट पाथ जो ऊपर गया O से Q तक, यहां स्क्रीन पे आ जाओ, O से Q तक, तो इसमें T/4 लगा है। Am I right or not? ओके, एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से O से Q पे, सर्किल में देखो, O से Q पे जाने में कितना एंगल ये रोटेट किया? 90 degree. तो आप अब स्क्रीन पे आ जाओ, स्क्रीन पे बोलोगे कि O से Q अपर एक्सट्रीम पे जाने में एंगल वाइज कितना पार्टिकल एडवांस किया होगा? 90 डिग्री, ठीक है ना। लीनियर में तुम्हें दिख नहीं रहा है, आपको इसका सर्कुलर फॉर्मेट में जाके सोचना है, ठीक है। तो O से लेके एक एक्सट्रीम A तक आना है अगर, तो उसमें एंगल वाइज कितना ये पार्टिकल मूव किया होगा? तो 90 डिग्री से एडवांस हो चुका है, ठीक है। ओके, Q से R में टाइम इसने कितना लैप्स किया? अगेन T/4, जो कि अगर लीनियर मोशन में देखें तो वापस Q से O पे आने का टाइम है। एंगल वाइज और कितना एडवांस किया है? तो 90 डिग्री मोर। तो जब पार्टिकल वापस O पे आ चुका है, कितना एंगल ये टोटल एडवांस हो चुका है? O से चला, वापस लौट के O पे आया है, हाउ मच एंगल इट हैज एडवांस्ड? 360 degree. 180 ना, 90 जाने का और वापस लौटने का 90, टोटल कितना हो गया?
180 डिग्री। 180. क्या आप जानते हैं इस बात को कि दो एरो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो इनके बीच में एंगल कितना होता है? 180 डिग्री ही होता है 180. ना, वेक्टर से सोचना है अभी। तो दो अपोजिट डायरेक्शन में एरोज है तो इनका एंगल 180 डिग्री। वही चीज यहाँ भी आ रहा है, पहले ओरिजिन से ऊपर जा रहा था, अभी ओरिजिन से नीचे जा रहा है, तो फेज वाइज एग्जैक्टली ऑपोजिट हो चुका है, 180 डिग्री हो चुका है। ठीक है। फर्दर थर्ड क्वाड्रेंट, टाइम t/4, तो O से S पे आने पे भी टाइम t/4। ठीक है। एंगल वाइज मैं बात करूं और कितना एंगल एडवांस हो चुका है, तो 90 डिग्री और ऐड कर दीजिए, इज इट 270 डिग्री। जब S पे खड़े होंगे तो कितना एंगल एडवांस हो चुका है O के रेस्पेक्ट में? 270 डिग्री। 270. ठीक है। वापिस जब S से O पे पहुंचेगा ये, तो फर्दर t/4 और एंगल वाइज फर्दर 90 डिग्री। सो टोटल जब ये वापस t/4 लगा करके, मतलब एक साइकिल जब कंप्लीट करेगा स्क्रीन पे, तो एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचेंगे कि 360 डिग्री इसने कंप्लीट किया है। ठीक है। जस्ट थिंक अबाउट इट वंस अगेन। तो अभी आप केवल टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचेंगे, आप एंगल के भी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। देखो, अगर मैंने ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये रहा मीन पोजीशन, बाय कन्वेंशन हमें राइट साइड ही लेना है पहले, तो ये है x बराबर a, यह है x बराबर -a। बताओ जब ये O से चल करके Q पे पहुंचेगा तो कितना एंगल एडवांस हो चुका है? 90 डिग्री. जब ये वापस Q से O पे आएगा तो प्लस 90 डिग्री और एडवांस होगा। जब O से वापस ये S पे जाएगा तो 90 डिग्री और एडवांस हो जाएगा, और S से वापस जब O पे लौटेगा तो 90 डिग्री और एडवांस हो जाएगा। तो एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री, और फिर यहाँ पे 360 डिग्री। दिस एंगल इज कॉल्ड फेज। ठीक है। तो ऊपर वाला फिगर समझ में आ गया सबको? यहाँ पे t = 0 मैंने यहीं से लिया है, कहीं और से भी ले सकते हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ा सिंपल करके चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सी फर्दर, अभी मैं फिर से ऊपर वाला फिगर वापस ले रहा हूँ, ये एक बार में समझाया जा सकता है। एक तो अब क्या करोगे ना, अब सुनो, आपको सर्किल नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा कि पार्टिकल इज इन एस एच एन। तो ऐसा रहेगा, बीच में कहीं पे y = 0 होगा, y = a होगा, एंड y = -a होगा। एम आई राइट? तो आप क्या करेंगे, सोचेंगे। शुरुआत के टाइम में तो आप समझने के लिए बना लेंगे, लेकिन बाद में फिर केवल सोच करके भी काम चला सकते हो, वंस यू गेट एक्सपर्टाइज्ड ऑफ दिस, कि इसके नीचे आप इस तरह से एक सर्किल बना लोगे अपने कन्वीनियंस के लिए। सेंटर किसके साथ अलाइन करना है? y = 0 के साथ। तो अपर एक्सट्रीम जो होगा वो यहाँ आ जाएगा, लोअर एक्सट्रीम यहाँ आ जाएगा, एंड यू नो दैट कि रेडियस इसका क्या होने वाला है? a होने वाला है। जो एम्पलीट्यूड होता है वही रेडियस लेते हैं। ठीक है। पार्टिकल आप इसमें, ये रहा O पॉइंट जो रेफरेंस है, कहीं भी पार्टिकल दिख सकता है मुझे। तो सपोज करो कि ये पार्टिकल मुझे t = 0 पे यहां दिखता है। अब मैं तुम्हें वो वापस समझा रहा हूं जो शुरू में सिखाया था, फेज। तो अगर t = 0 पे तुम्हें यहां दिखता है तो इसका मतलब क्या पार्टिकल यहां पे है? बताओ मुझे। t = 0 पे सर्किल में देखो, वेयर इज द पार्टिकल एट t = 0? इज इट एट O? यस, नो? Yes, sir. फिर से, आई सेड दैट द पार्टिकल इज, मतलब ऑक्सीलेशन हो रहा था। जैसे ही मैंने देखना शुरू किया ना, मैं यहां पे ए पे पार्टिकल को देखा, तो क्या पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे है? यस, नो? No. No. नो। अब आ जाओ सर्किल में,
अभी लाइन पे देख रहे थे, अब आ जाओ सर्किल में। क्या पार्टिकल O पे रहेगा t इक्वल्स टू 0 पे? आंसर इज नो। वेयर इज द पार्टिकल? ये जो मैंने शो किया है फिगर में t इक्वल्स टू 0 पे, वहां A लिखा अभी अभी। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. क्या इस पोजीशन के लिए, सर्किल में बात कर रहे हैं, क्या इस पोजीशन के लिए कुछ एंगुलर पोजीशन दिख रहा है तुम्हें? Yes, sir. This is what we call delta. What was delta? Delta was the initial angle. You remember? Yes, sir. Initial angle. यहां नहीं लिखते हैं, अलग से लिख देते हैं। डेल्टा इज द एंगल एट t इक्वल्स टू 0। तो ये है हमारा डेल्टा। ठीक है, अब जरा यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो ऐसे। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस x नॉट इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ a एंड डेल्टा? A sin delta. Delta. सो यू एग्री दैट x नॉट इक्वल्स टू आ रहा है a साइन डेल्टा। क्या ये बात कहीं पे लिखा है मैंने पीछे? साइन डेल्टा इक्वल्स टू x नॉट अपॉन a। डेरिवेशन के टाइम पे लिखा था, Yes, sir. लेकिन वहां मीनिंग नहीं क्लियर हो रहा था। अब क्या आपको समझ में आ रहा है कि जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x है ना पाथ पे, उसका एंगुलर कन्वर्जन जो होता है वो होता है डेल्टा। ओके, नाउ थोड़े देर बाद पार्टिकल कहीं यहां दिखा b पे मुझे, आफ्टर टाइम t। तो ये कुछ और एंगल चल चुका है, देखो, और b के करस्पॉन्डिंग जो शैडो आएगा वो यहां आ रहा है b पे। कैन यू सी ऑन द स्ट्रेट लाइन? इस पोजीशन को मैं बोलूंगा y। ये x नॉट से डिनोट कर रहे तो चलो x ही बोल देते हैं। ठीक है, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस एंगल इन टर्म्स ऑफ ओमेगा एंड t? ये ओमेगा से चल रहा था, t टाइम के लिए चला है, देन व्हाट इज दिस एंगल इक्वल्स टू? इज इट ओमेगा t? क्या मुश्किल है इतना? सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हो तुम लोग। ओमेगा स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है टी टाइम के लिए। यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना है? टी टाइम। तो इस टी टाइम के लिए अगर चला तो ये एंगल कितना हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी। Yes, sir. ठीक है, नाउ ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू दिस। ये है तुम्हारा x, ये है r। ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल तुम्हें दिख रहा है उसमें x और r में जरा रिलेशन स्टैब्लिश करके देखो क्या आ रहा है। आर यू गेटिंग? x इक्वल्स टू, सॉरी r का मतलब a से है, a साइन हाउ मच इज द एंगल? Omega t. ओमेगा टी प्लस डेल्टा ना। क्या यही SHM इक्वेशन निकाला था हम लोगों ने? Yes, sir. So are you able to visualize now the linear motion on the straight line corresponding to a uniform circular motion of the particle in the circle, which is giving me the same equation? समझे? तो ये है सर्कुलर इंटरप्रिटेशन। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में और डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। ये समझ लिया ना तो मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारा क्वेश्चन हम बहुत शॉर्ट में बनाते हैं, नहीं तो मैथमेटिकली हम बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करते रह जाएंगे। ठीक है, और आई होप कि ये वाला बात क्लियर भी हो गया है। एक तरफ SHM है जो कि लीनियर मोशन होता है -a से +a के बीच में, उसके बाजू में हमें एक सर्किल बनाना है जिसमें एक पार्टिकल साथ साथ चल रहा हो। ठीक है, दोनों साथ साथ चल रहा है, एम्पलीट्यूड एंड सर्कुलर मोशन, सॉरी शैडो एंड पार्टिकल दोनों साथ साथ चल रहा होगा। तो शैडो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा होगा और पार्टिकल सर्किल में चल रहा होगा, एंड देयरफॉर आई विल बी एबल टू कनेक्ट देयर मोशन, जो कि सेम ही आने वाला है। ठीक है, सो विल टॉक फर्दर ऑन दिस इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, सो फार योर वर्क इज टू कीप अपडेटिंग योर नोट्स, एंड जो जेईई मेंस का पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन सब लोग बना के सबमिट करो। मैं अभी लिंक क्रिएट करके भेज रहा हूं तुम लोगों को।
Bye bye everyone. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Yeah.